student, welcome to Gyanjyoti online classes. Student, in this video we will learn or discuss about the our chapter number 6, changes around us. Okay student, we already discussed about short type questions, objective type questions, fill in the blanks, true false and match the column. Okay, so student, now we will discuss about the short answer type questions. Okay, very short answer type question. Number G. Very short answer type question. First question, define change. What is change? What is the meaning of change? So student, now we will discuss about the change. Number 1, what is change? So alternation in physical and chemical properties of matter due to the effect of energy is called a change. Okay student, so define change. What is the meaning of change? Alternation in physical and chemical properties of matter. Okay, so student, any types of matter that they are physical and chemical nature, how the matter that present and next, what will the effect that convert into new form. Okay, so alternation in the physical and chemical properties of matter due to the effect of energy is called a change. देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या हो रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नया जो मटेरियल होगा वो फिर से नया चेंज होगा, और फिजिकल इसका स्टेट सेम रहेगा बट उसके जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और उसके जो स्टेज वो कन्वर्ट अलग होता है. ठीक है, सो अल्टरनेशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, उसके अल्टरनेशन. ठीक है, मैटर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनर्जी, इससे इफेक्ट होता है, एनर्जी से ये इफेक्ट होगा, एनर्जी इज कॉल्ड ए चेंज. ठीक है, सो चेंज क्या है? फिजिकल और केमिकल इसके अल्टरनेशन रहेगा, मीन्स फिजिकली या चेंज होगा और इसमें केमिकली चेंज होगा. ठीक है, मैटर जो है ये किससे होता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम नंबर 2. गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम योर डेली लाइफ. okay so student, you can write water on boiling, okay, expansion and rails of the railway tracks. Okay student, you can write 2 example of expansion. Okay, number 8, expansion of water on boiling. And number 2, expansion of rails
of railway train. Okay, student, second number, give any examples of expansion from daily life, that is expansion of water on boiling and expansion of rails of railway train. Okay, okay student, now we come number 3, each pulling of rubber or string or a reversible change, why? Okay, so student, yes, pulling is the reversible change, and as the rubber is stretches on the pulling, but after it is released, it against its original form and shape. Okay student, now we come number 3. Number 3, yes, pulling of rubber string a reversible change? Yes, of course, pulling of rubber string a reversible change. Okay, and why? Because, okay, write down number 3, yes, as the rubber is stretches on pulling, but after it is released, its attained its original position. Original form or original position and shape. Okay student, so each pulling of rubber string a reversible change? Yes, a reversible change. And why? Because as the rubber is stretches on pulling, but after it is released, it attains its original form and shape. Okay student, देखो जो रबर को हम पुल करेंगे, ठीक है, उसको खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, इसके रिवर्सेबल चेंजेस होगा, ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट जो है इसके क्यों होता है ये, ठीक, इसमें स्ट्रेचेस होगा और पुलिंग करेंगे थोड़े समय, फिर इसके ओरिजिनल शेप और साइज में फिर से ये आ जाएगा. ओके ओके स्टूडेंट, नंबर 4, नेम एनी 2 चेंजेस व्हिच आर फिजिकल बट इरिवर्सिबल. ओके, ऐसे 2 नाम बताना है जिसके चेंजेस फिजिकल चेंज है, ठीक है, बट इरिवर्सिबल है, ठीक है. ओके स्टूडेंट, सो some of the example you can say, okay, so number 4, tearing of paper. Okay, number B, cutting of hair. Okay, so some of the examples of changes that so student, any 2 changes which physically that physical but irreversible, that is tearing of paper and cutting of hair. Okay, okay student, next number 5th, name any
to undesirable changes which can be converted into desirable changes after a little effort. Okay, so you can say some of the example, that is some of the means student, number 5, to undesirable changes which can be converted into desirable changes after a little effort. ठीक है, तो ये कुछ भी लिटिल एफर्ट इसमें होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी एफर्ट होने से ये कन्वर्ट, इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में। ठीक है, सो स्टूडेंट, सम ऑफ द एग्जांपल दैट रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन, स्टूडेंट रस्टिंग जो है ये जो जंग लगता है। ठीक है, इसके बाकी जो केस होते हैं कॉपर, सिल्वर, उसमें जो होता है उसमें कोरोजन भी कहा जाता है। ठीक है, साइंटिफिक इसमें नाम है कोरोजन, और रस्टिंग आयरन केस में ही कहा जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, एंड स्पॉइलेज of food, some of the examples of that changes which can be converted into desirable changes after a little effort. Okay, and define forging. ठीक है, तो forging क्या है, इसे डिफाइन करना है। ओके, नंबर 6, shaping metals by heating and hammering, is called forging। मेटल्स को हम शेप देंगे। ठीक है, एंड हीट करेंगे, और हीट के द्वारा उसको शेप देंगे। ठीक है, और हैमर करके उसको पीट कर उसको एक शेप देंगे। ठीक है, तो मेटल जो शेप आता है वही को हम कहेंगे फॉर्जिंग। ओके, ओके स्टूडेंट, सो all these about your number very short answer type questions. Okay, so student, next now come number H, short answer type questions. Number H, can the same change be desirable at one time and undesirable at another? If so, then explain with the help of some example. Okay student, तो यहाँ हम कुछ जो डिजायरेबल चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो क्या डिजायरेबल चेंजेस जो है और एक टाइम होने के बाद अनडिजायरेबल चेंजेस एक अलग होगा, अनडिजायरेबल चेंजेस, एंड इफ सो देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल लेके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो ये पॉसिबल है ये। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम, ओके, कैन द सेम चेंज बी डिजायरेबल एट वंस टाइम एंड अनडिजायरेबल एट अनदर, मतलब एक बार डिजायरेबल होगा और अगले बार अनडिजायरेबल होगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, सो इफ सो देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। ठीक है, सो सेम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यस, नंबर H1, ओके, और दिस सेम चेंज कैन
be desirable at one time and undesirable at another. Sorry. At another. Okay. For example, ठीक है, एक बार ये डिजायरेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. सो a ripening of fruit okay is a desirable change, but over ripening, ठीक है, अगर ज्यादा राइटनिंग होगा, ओवर राइटनिंग इज एन undesirable change. ऑल्सो, और एग्जाम्पल दे सकते हो, ऑल्सो रेन is a desirable but continuous rain can cause flood. Which is an undesirable change. Okay, student. Yes, the same change can be desirable at one टाइम एंड अनडिजायरेबल एट अनदर. ठीक है, एक बार वो डिजायरेबल हो सकते हैं सेम चेंज, ओके, ठीक है, और एक बार वो अनडिजायरेबल चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ए डिजायरेबल चेंज. ठीक है, तो जब फ्रूट जो पकता है तो ये हो जाएगा डिजायरेबल चेंज, बट ओवर राइपनिंग इज एन अनडिजायरेबल चेंज. ठीक है, ज्यादा पक जाएगा तो ये undesirable changes हो जाएगा. And also rain is a desirable but continuous rain can cause flood. Okay, continuous rain होते रहेगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फ्लड जो है which is an undesirable change. ठीक है, वो जो हो जाएगा undesirable change. Okay, student, now we come another number 2. Number 2, why does an inflated balloon shrink in size when kept inside a freezer? Okay, so student, इसके साइज में क्यों ये श्रिंक हो जाते हैं. ठीक है, और when kept inside a freezer, इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा. ओके स्टूडेंट, सो number 2, an inflated balloon string
in size due to the property of contraction. Since gases contract on cooling, so the gas inside balloon contract on keeping inside the freezer. Thus the balloon shrinks. Student, inflated balloon shrinks in size due to the property of contraction. ठीक है, तो inflated balloon, ठीक है, flatted और inflated, ठीक है, इसमें एयर नहीं होगा. सो देखो स्टूडेंट, सिंस gases contract on cooling, so the gas inside balloon contract on keeping inside the freezer. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गैसेस फ्रीजर में रखने से क्या होगा, does the balloon shrink, बैलून जो है वो श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट नंबर, हाउ कैन ए स्मॉलर आयरन रिम बी फिटेड ऑन ए लार्ज वुडन व्हील. Okay, so a smaller iron rim can be fitted on a number 3 smaller iron rim can be fitted on a larger wooden wheel by the process of expansion. As the metals expand on heating, so iron ring is heated and when it gets expanded. It is heated on a larger wooden wheel. Okay, student, what is the question of number 4?
Number 3, how can a small iron ring be fitted on a larger wooden wheel? ठीक है, तो छोटा सा जो स्मॉल आयरन रिम है, ठीक है, तो वुडन व्हील में कैसे ये फिट होता है, ठीक है, ये है और ये वुडन व्हील है, ठीक है, इसमें कैसे फिट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये स्मॉलर आयरन रिम कैन बी fitted on a larger wooden wheel by the process of expansion. As the metals expands on heating, so iron rim is heated, and when it gets expanded, it is fitted on a larger wooden wheel. क्या होता है स्टूडेंट, देखो जो रिम है, ठीक है, ये इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है, और इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस है, इससे क्या होगा, मेटल जो है एक्सपेंड करेगा हीट से, हीट देने के बाद वो एक्सपेंड हो, एंड आयरन रिंग इज हीटेड एंड व्हेन इट गेट्स एक्सपेंडेड, और ये हीट करने के बाद एक्सपेंड होगा, और ये हीट ये वुडन व्हील में हीट होगा, ओके देन, सो दिस इज योर नंबर 3, ओके। नाउ वी कम नंबर 4, list the different effects produced on object on heating and cooling, okay, so इसके लिस्ट देखना है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। नंबर 4, on heating or cooling the object either expand or contract. Such as cooling respectively, while solid expand the list on heating and contract the list on cooling. Student, number 4, list the different effects produced on object on heating or cooling, ठीक है, तो ये हीट देने से और कूल होने से इसके क्या इफेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट, ऑन हीटिंग और कूलिंग द ऑब्जेक्ट्स आइदर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो हीट करने से वो एक्सपेंड होंगे और जब हम कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सच कूलिंग रेस्पेक्टिवली वाइल सॉलिड्स एक्सपेंड दी लिस्ट ऑन हीटिंग, ठीक है, तो कूलिंग जो प्रोसेस है ये क्या करेगा, सॉलिड एक्सपेंड, ठीक है, वो जो सॉलिड है तो वो एक्सपेंड, ओके, एंड द लिस्ट ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट द लिस्ट ऑन कूलिंग, ठीक है, तो जब कूलिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हीटिंग देंगे तो उसको एक्सपेंड करेगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, दिस इज योर नंबर 4। नेक्स्ट नाउ फॉर्म नंबर 5।
why cooking of food is a chemical change. Okay, so cooking of food is a chemical change because on cooking the vegetables lose their original properties and convert into a new substance. Okay, that is dish. Okay, so student, number 3, cooking of food is a chemical change because on cooking the vegetable lose their original properties and they are offered a new property. New properties with the formation of a new substance. That is this. स्टूडेंट, नंबर 5, वाई कुकिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज. ठीक है, तो केमिकल चेंज क्यों कहेंगे? ठीक है, जब जितने भी वेजिटेबल्स बनते हैं कुकिंग प्रोसेस, ठीक है, कुकिंग प्रोसेस, तो इसमें क्या है कि कुकिंग से केमिकल चेंज क्यों है? तो cooking of food is a chemical change because on cooking the vegetables lose their original properties and there occurs new properties with the formation of a new substance, that is this. तो ये chemical process क्यों है, physical क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो स्टूडेंट कुकिंग प्रोसेस जो है ये केमिकल चेंज है. कैसे केमिकल चेंज है? बिकॉज ऑन कुकिंग द वेजिटेबल्स लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, जो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हो चुका है. ठीक है, एंड देयर ऑफर्स न्यू प्रॉपर्टीज. तो जब वेजिटेबल्स जो होते हैं वो जैसे ग्रीन रहते हैं, ठीक है, जब कुकिंग के बाद, खाना बनाने के बाद जितने वेजिटेबल्स थे, ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ट होते हैं, वो नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड न्यू प्रॉपर्टीज विद द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, दैट इज डिश. वो क्या में डिश में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज में क्या होता है, जो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं सब्सटेंस का, वो चेंज होते हैं, न्यूली चेंज होंगे. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म बाय द chemical process. Okay, so student, your number H, number 8, okay, number 8 completed. Next, now we come number I, that is long answer type question. Okay, so long answer type questions you have to try yourself. Okay, what are the various categories in which we can classify changes? Explain by giving an example of each. ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है किसके बारे में? चेंजेस, वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस. ठीक है, सो स्टूडेंट, चेंजेस दैट नेचुरली एंड मैन मेड. ठीक है, जो नेचुरली होता है और जो मैन मेड होता है. ठीक है, आर्टिफिशियल. सो नेचुरली चेंजेस फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, चेंजिंग ऑफ वेदर, वाइल मैन मेड
तो मैन मेड क्या है, देखो मैन मेड चेंजेस आर कटिंग ट्री, कुकिंग फूड, ये मैन मेड आर्टिफिशियल और मैन मेड चेंजेस। ओके, इसी पॉइंट में सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। व्हाट इज पीरियडिक चेंजेस? पीरियडिक चेंजेस आर मोशन ऑफ ए स्विंग, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, while non-periodic changes are tsunami, floods। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में लिख सकते हो डिजेरेबल एंड अनडिजेरेबल चेंजेस। डिजेरेबल चेंजेस आर ड्राइंग ऑफ क्लोथेस, ठीक है, कपड़े सुखाना, डिजेरेबल चेंजेस, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, while अनडिजेरेबल चेंजेस आर एक्सीडेंट, डिजास्टर, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल अभी बताया था जिसमें कि रेन होना ये डिजायरेबल है, और कंटिन्यूअस रेन होते जाएंगे तो ये होगा अनडिजायरेबल चेंजेस। ठीक, स्टूडेंट नंबर इसी पॉइंट में फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो स्लो एंड फास्ट चेंजेस। स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या है? स्लो चेंजेस आर कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनटू एंड एडल्ट, वाइल फास्ट चेंजेस क्या है? तो स्लो चेंजेस होता है, स्लो ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बहुत सालों बाद एक छोटा चाइल्ड जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत समय लगता है, तो ये स्लो चेंजेस है, ठीक है। और जो फास्ट होता है जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, बहुत फास्ट जलता है, एंड दैट बर्स्टिंग ऑफ बैलून, ठीक है, बैलून को फुलाना। और लास्ट पॉइंट जिसमें फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिख सकते हो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस, चेंजेस आर आइस इनटू वाटर, ठीक है, वाटर इनटू आइस, वाइट, तो ये जो है रिवर्सिबल है, वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होगा, आइस जो है फिर से वाटर में कन्वर्ट होगा। एंड इरिवर्सिबल चेंजेस राइपनिंग ऑफ वेजिटेबल्स और ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो फ्लावर एक बार ब्लूमिंग होगा तो उसके बाद फिर से वो नहीं करेगा, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और क्या है, जो फ्रूट एक बार जब राइप हो गया, ठीक है, वो पक गया, फिर से वो दोबारा नहीं होगा, तो ये और रिवर्सिबल, ठीक है, सॉरी इरिवर्सिबल। ओके स्टूडेंट, नंबर 2, व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस? एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो इसको एक्सप्लेन करोगे। द चेंजेस विथ द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बैक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, जो अपना ऑब्जेक्ट रिवर्सिबल जो है ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आइस इंटू वाटर, वाटर इंटू आइस, तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इंटू आइस एंड देन मेल्टिंग ऑफ आइस अगेन इन फॉर्म ऑफ वाटर इज ए रिवर्सिबल चेंजेस। तो अब आ जाओ अनरिवर्सिबल में। अनरिवर्सिबल क्या है? व्हाइल द चेंजेस from which we cannot get the object or materials back in their original form are called irreversible changes. Okay, for example burning of paper turn into ash, burning of paper क्या कन्वर्ट होगा? आश में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टर्न इनटू ए पेपर अगेन। ओके, नंबर 3, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट हीट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको एक्टिविटी से लेना है, हीट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, यस ऑब्वियसली करता है। सो यू हैव टू ट्राई पेज नंबर 50, एग्जामिन से ले सकते हो पेज नंबर 50, यू कैन सी योर बुक, अपने बुक में देख सकते हो पेज नंबर 50 का इसमें आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नंबर 4, गिव रीजन, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम इज कंसीडर ए फिजिकल चेंज, ठीक है, तो ये रीजन बताना है कि ये क्यों जो है आइस जो है आइसक्रीम इज कंसीडर ए फिजिकल चेंज, आइसक्रीम मेल्ट होना फिजिकल चेंज क्यों है? बिकॉज इट इज ए फिजिकल चेंज, इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू आइसक्रीम व्हेन केप्ट इन ए फ्रीजर, फ्रीजर में फिर रख देंगे तो ये आइसक्रीम कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ओके स्टूडेंट, होल्डिंग ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज ए रिवर्सिबल चेंज, यस इट इज ए रिवर्सिबल चेंज बिकॉज on folding the cloth we can have the
whole cloth in original form. Okay, student, number C, ripening of fruits is considered as a chemical change. Okay, so student, it is a chemical change because on ripening the color of the fruit changes, as does its texture. Okay, and it's become the soft with the breakdown of its constituent. Okay, number 5, explain the forging and casting एंड हाउ आर दे यूज इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, हम फोर्जिंग करेंगे और कास्टिंग करेंगे. ठीक है, तो जिसमें हम फोर्जिंग करने बताया था अभी, जो कि मेटल को हम हैमरिंग करेंगे या हीट करेंगे, तो उसके जो प्रोसेस है वही फोर्जिंग है. सो द प्रोसेस ऑफ फोर्जिंग और कास्टिंग मेटल्स इन फिजिकल चेंज यूज टू मेक मेटालिक टूल्स. तो उसमें बहुत सारे टूल्स बनते हैं. ठीक है, जो कि हम आयरन का बहुत सारे टूल्स हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं. इन फोर्जिंग दी मेटल्स आर गिवन शेप आइदर बाय हीटिंग और ऑन hammering while in casting. Okay, the metals are melted and then the molten metals are poured into the mold for desirable shape. In daily life they used to make that statue, candle, okay, and stand or figurines, etc. Okay, so student, all this is about your long type questions, so you have to try to solve the. Okay, so student, I hope you understand all of the question answers. Okay, so student, your chapter number 6 exercises that completed. Next we will do this chapter number 7. Okay, okay student, have a nice day. Okay, thank you, have a nice day.